ٹھاٹھے مارتے سمندر کے لہروں میں گرا ایک چھوٹا سا جزیرہ، جہاں تمام مسلم دنیا کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ لیکن قدرت بھی اپنے منصوبے بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ اسے کسی اور جگہ تلاش تھی، اپنے ماں باپ، اپنی شناخت، اپنے مذہب کی۔ اس نے آنکھ کھولی تو وہ بھیڑیوں کے غول میں پھنسا ہوا تھا جو اسے کچا چبا جانا چاہتے تھے۔ لیکن قدرت اسے ایک اہم مقصد کے لیے چن چکی تھی، محبت، نفرت، سنسنی سے بھرپور لہو رنگ داستان۔ محافظ۔ سب سے پہلے ایک لمبا ترنگا سانولے رنگ کا نوجوان رنگ میں آیا۔ اس کے سر کے بال حبشیوں کی طرح سخت گھنگریالے تھے، اس کا نقوش دلکش تھے اور جسم کثرتی تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ اس کی زندگی جدوجہد اور مشقت میں گزری تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ شمالی افریقہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اسے سادہ سی پتلون قمیض پہن رکھی تھی۔ یہ احمد بربری ہے۔ جانگرے نے جھک کر میرے کان میں سرگوشی کی۔ یہ ہمارا مجرم ہے۔ مجرم؟ میں چونکا۔ کیا کیا اس نے؟ ایک مستند بین الاقوامی دہشت گرد ہے۔ اس کا تعلق الجزائر کی اسلامی تحریک سے ہے۔ پائی حکومت کو کئی دہشت گردی کی وارداتوں میں مطلوب ہے۔ یہ الجزائر سے بھاگ کر فرانس چلا گیا اور وہاں دہشت گردی کے ایک بین الاقوامی نیٹ ورک کے لیے کام کرنے لگا۔ بحیرہ روم میں اس نے ہمارے مفادات کو شدید نقصانات پہنچائے۔ بڑی مشکل سے یہ ہمارے ہاتھ آیا۔ ہم نے اس جگہ لا کر اس پر مقدمہ چلایا اور اسے سزائے موت سنا دی۔ اسے ایک موقع دیا ہے کہ وہ یہ مقابلہ جیت کر سزائے موت سے بچ سکتا ہے، مگر یہ بچے گا نہیں۔ جانگرے کے لہجے میں اس کے لیے نفرت تھی۔ تم لوگ کسی کو سزائے موت دینے والے ہوتے کون ہو؟ ہم طاقتور ہیں، اس لیے ہم یہ اختیار رکھتے ہیں، اس نے غرور سے کہا۔ ہم اپنے مجرموں کو مخالف کہو۔ میں نے اس کی بات کاٹی۔ چلو مخالف صحیح، اس نے ہنس کر کہا۔ ان مخالفوں کو ہم نشان عبرت بنا دیں گے تاکہ آئندہ کوئی مخالفت کی جرت نہ کرے۔ یہ خوش فہمی ہے، میں نے طنز کیا۔ جبر کے خلاف مزاحمت ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اپنے مخالفوں سے نجات حاصل کر سکتے ہو کہ مخالفین کو ختم کر دو۔ وقت آنے پر ہم ایسا بھی کریں گے، وہ بے پرواہی سے بولا۔ فی الحال تو اس کا عبرت ناک انجام دیکھو۔ میں نے احمد بربری کی طرف دیکھا تو میرے اندر سے بے اختیار صدا نکلی کہ اس نوجوان کو مرنا نہیں چاہیے۔ اتنی خوبصورت جوانی کو مٹی میں نہیں ملنا چاہیے۔ اس لمحے رنگ کے دوسرے دروازے سے ایک دیو نمودار ہوا۔ قد و قامت کے لحاظ سے ایک دیو ہی کہنا چاہیے۔ اس کا قد 7 فٹ سے بھی نکلتا ہوا تھا۔ پہاڑ جیسا جسم، لیکن سر جسم کے مقابلے میں چھوٹا تھا۔ اس نے چہرے پر مختلف رنگ اس انداز میں کر رکھے تھے جس کا چہرہ شیطان جیسا لگ رہا تھا۔ سر گھٹا ہوا تھا جس کی وجہ سے جسامت اور بھی چھوٹی لگ رہی تھی۔ اس نے چمڑے کی سیاہ پتلون اور بنیان پہن رکھی تھی جس میں اس کے جاندار پٹھے ظاہر تھے۔ مجھے وہ جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ میں اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ جان گرے نے میری مشکل آسان کر دی۔ اس نے جھک کر کہا، یہ شیطان ہے۔ وہ تو شکل ہی سے معلوم ہو رہا ہے، میں نے کہا۔ میں اب اسے پہچان گیا تھا۔ وہ ایسے 3-4 سال پہلے تک امریکن ریسلنگ کا جانا پہچانا نام تھا۔ اس نے کوئی بیلٹ بھی حاصل کی تھی لیکن پھر اس پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ وہ مقابلے کے دوران اداکاری بھول کر سچ مچ مخالف سے لڑنے لگتا تھا۔ اس نے کئی بار حریف پہلوان کو شدید زخمی کر دیا اور ایک پہلوان کو تو تقریباً مار ہی دیا تھا۔ اس کے بعد اس پر پابندی لگا دی گئی تھی اور وہ منظر سے غائب ہو گیا۔ ہم نے اسے ہائر کر لیا، جانگرے بولا۔ اب یہ ہمارے لیے لڑتا ہے لیکن ہر مقابلے میں شامل نہیں ہوتا، بلکہ اسے صرف خاص مقابلوں کے لیے مخصوص کر لیا گیا ہے۔ عام طور سے یہ ہمارے مخالفوں سے مقابلہ کرتا ہے اور انہیں عبرتناک طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ اب تک اس نے 15 مقابلے کیے اور سب میں فاتح رہا ہے۔ اس دیو کامت شیطان کو دیکھ کر احمد بربری کے چہرے پر خوف تو ایک طرف، فکر کے آثار بھی نظر نہیں آئے تھے۔ وہ سکون سے پاؤں پھیلائے کھڑا تھا۔ اپنے لمبے ترنگے وجود کے باوجود اس شیطان کے سامنے بچہ لگ رہا تھا جو اپنی چھوٹی چھوٹی کینہ توز آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ ڈیول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سسپی کے علاقے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے نسل پرستی کا زور رہا ہے۔ ڈیول کا خاندان بھی زبردست نسل پرست رہا اور اس کا باپ نسل پرست تنظیم کا لیڈر تھا۔ ٹرپل کے کہلانے والی اس دہشت گرد جماعت کی تاریخ 100 سال پر محیط تھی۔ نظریاتی طور پر اس نے اس وقت ہی جنم لیا تھا جب امریکی صدر ابراہم لنکن نے غلامی کے خاتمے کا اعلان کیا تھا۔ غلاموں کے خلاف اس تنظیم نے طویل عرصے تک دہشت گردی جاری رکھی تھی۔ ڈیول کا باپ ایک حملے میں مارا گیا جب وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سے افاموں کی ایک بستی پر حملہ کرنے گیا تھا۔ جوابی فائرنگ سے وہ اپنے ساتھیوں سمیت جہنم رسید ہوا۔
इस पर चिराग पान नस्ल परस्तों ने इलाके में कयामत ढा दी थी। डेविल भी अपने बाप के मौत से मुतासिर हुआ था और उसने कसम खाई थी कि वह हर गैर सफेद फार्म से अपने बाप के मौत का इंतकाम लेता रहेगा। आवारागर्दी, बदमाशी और नस्ल परस्त ग्रोहों से होता हुआ वो बिलाखिर रेसलिंग की दुनिया में दाखिल हो गया। बिलाखिर उसे यहां से भी निकाल दिया गया। डेविल हमारा बेहतरीन कारकुन है, जानगरे ने फख्र से कहा। बिलाशुबा शैतान के लिए ऐसे ही कारकुन बेहतरीन थे। डेविल जुबान और जिस्म से अपने आज़ाइम का इजहार कर रहा था कि वो किस तरह अहमद बरबरी को मौत के घाट उतारेगा। इसकी लाफ गिराफ सुनकर वहां मौजूद लोगों के चेहरे सफेद हो गए थे, लेकिन अहमद बरबरी के इत्मीनान में कोई फर्क नहीं आया था, बल्कि वो मज़हक्का उड़ाने वाली नजरों से डेविल की तरफ देख रहा था। रिंग में कोई ऐसा बंदोबस्त था कि वहां होने वाली मामूली सी आहट भी पूरे हाल में सुनाई देती थी। हम भी डेविल की गुफ्तगू सुन रहे थे, जिसका अक्सर हिस्सा सिर्फ बालगान के लिए था। आखिर में उसने हकार से अहमद बरबरी की तरफ देखा। तू क्या कहता है कीड़े? सिर्फ इतना कि गरजने वाले बादल बरसा नहीं करते और भौंकने वाले कुत्ते काटा नहीं करते, वो सुकून से बोला। तमाशाइयों की तरफ से कह के बुलंद हुए थे। उसके एक जुमले ने फिजा बदल दी थी। डेविल के हल्क से बेमानी सी आवाजें निकली और वो अहमद की तरफ बढ़ा। हालांकि अभी घंटी नहीं बजी थी, लेकिन चालाक मुंतजिमीन ने फौरन ही घंटी बजा दी थी ताकि डेविल का टेम्पो बरकरार रहे। डेविल की हरकत में आते ही अहमद बरबरी रिंग में आहिस्ता आहिस्ता उछलते हुए चक्कर लगाने लगा। आ कुत्ते, अगर तेरे मुंह में दांत हैं तो मुझे काट कर दिखा। इस जुमले ने डेविल को पागल कर दिया। वो अंधे बैल की तरह उसकी तरफ दौड़ा। अहमद सुकून से खड़ा रहा। मेरा ख्याल था कि वो एक तरफ हो जाएगा, इसके बजाय उसने स्लिप होकर डेविल की टांगों से टांग फंसाई और पीछे की तरफ रोल कर गया। डेविल दोगुनी रफ्तार से मुंह के बल गिरा। इसके मुंह और नाक से खून के साथ कालियों का फवारा भी उबल पड़ा था। अहमद ने उस पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे छोड़कर पीछे हट गया। रिंग में चक्कर लगाते हुए उसने दोबारा जुमला कसा। मेरा ख्याल है तुम्हारी मां रूसी नस्ल की कुतिया थी, इस वजह से तुम्हारा सर छोटा रह गया। डेविल उठकर एक बार फिर उसकी तरफ लपका। अहमद बरबरी पीछे हटा। दीवार के साथ लगकर उसने दोनों हाथ उठाए जैसे उसे हाथों से रोकना चाह रहा हो। मारा जाएगा, मैंने दिल में कहा। एक बार इस देव के कब्जे में आ गया तो उसकी बचत मुमकिन न रहती, लेकिन उसने एक बार फिर हैरान कुन दाव आजमाया था। डेविल की सारी तवज्जो उसके हाथों की तरफ थी, लिहाजा वो इसके पांव को उठते और अपनी नाव की तरह आते न देख सका। इसकी रफ्तार ने वार की कुव्वत तो खुनी कर दी थी। वो दहाड़ कर पीछे जा गिरा और जमीन पर लोट पोट होने लगा। वार भरपूर था और बिल्कुल दुरुस्त जगह पर लगा था। अगर डेविल की जगह कोई आम आदमी होता तो शायद मर जाता, लेकिन वो सिर्फ नाम का शैतान नहीं था, बल्कि इसके वजूद में भी शैतानी कुव्वत भरी हुई थी। वो एक बार फिर उठ खड़ा हुआ। इस दौरान में अहमद ने आला ज़र्फी का मुजाहरा करते हुए उस पर हमला नहीं किया। मैंने जानगरे की तरफ देखा, उसका चेहरा तारीख हो रहा था। ये तो हमारे अंदाजे से ज्यादा तेज है, उसने जेर लब कहा। अफसोस कि तुम लोग हमेशा गलत अंदाजे लगाते हो, मैंने तबसरा किया, जिस पर उसने नागवारी से मुझे देखा। मैं मुस्कुराते हुए मुकाबले को देख रहा था और मेरी तशवीश खासी हद तक कम हो चुकी थी। मुझे यकीन था कि डेविल अब इस नौजवान पर आसानी से काबू नहीं पा सकेगा। डेविल तीसरी बार अंधाधुंध हमला आवर हुआ और अहमद ने यह हमला भी बासानी नाकाम बना दिया। इसके बाद डेविल मोहतात हो गया। अब वो अहमद बरबरी को घेरने की फिक्र में था। वो मखसूस अंदाज में उछलता हुआ रिंग के चक्कर लगा रहा था। डेविल की मुगलजात के जवाब में वो जुमले कसकर उसे तैश दिलाने की कोशिश कर रहा था, मगर डेविल गुस्से में नहीं आ रहा था। वो खासा जख्मी था और नाजुक जगह पर शदीद ज़र्ब खा चुका था, लेकिन ये चोटें उसे ज्यादा देर नहीं रोक सकती थी। अहमद को इस पर फैसला कुन ज़र्ब लगानी चाहिए थी। मुझे अफसोस हो रहा था कि उसने 2 बार जमीन बोस डेविल को राहत दी थी। शायद वो अपने मिजाज से मजबूर था और ये भूल गया था कि ये एक बेअसूल मुकाबला था जिसमें किसी किस्म के इखलाक की गुंजाइश नहीं थी। हरीफ को हर कीमत पर किसी भी तरीके से मौत के घाट उतारने का सवाल था। अगर डेविल को मौका मिल जाता तो वो इसे किसी किस्म के रायत न देता और फिलफौर उसे मौत के घाट उतारने की कोशिश करता। डेविल रफ्ता रफ्ता अहमद के करीब होता जा रहा था। बज़ाहिर अहमद उससे बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर पर वो हमला आवर हुआ। उसने फ्लाइंग किक के अंदाज में उछलकर दोनों पैर जोड़कर उसके पेट में मारे। अभी वो पहली तकलीफ से ही नहीं संभला था कि ये दूसरी कयामत उस पर टूट पड़ी थी। वो जमीन पर तड़पता हुआ इधर उधर होने लगा। अहमद एक बार फिर सुकून से खड़ा हो गया। जानगरे ने कहा, लानत हो। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसका एक हाथ अपनी निशिस्त के निचले हिस्से की तरफ जा रहा था। इसी लम्हे मैंने एक लम्हे के लिए गूंजने वाली सीटी नुमा आवाज सुनी। आवाज गूंजते ही डेविल चौंकाया था। उसने इधर उधर देखा। वो भी पेट पकड़े हुए था। मैंने जानगरे से पूछा, यह आवाज कैसी थी? कौन सी आवाज? उसने मासूमियत से कहा।
यही सीटी जैसी आवाज जो एक लम्हे के लिए गूंजी थी। मालूम नहीं, मैंने तो नहीं सुनी। शायद साउंड सिस्टम में कोई खराबी हुई होगी, लेकिन मुझे यकीन था कि साउंड सिस्टम में कोई खराबी नहीं हुई थी। ये कोई ना कोई चक्कर था, कोई ऐसा इशारा या पैगाम था टेबल के लिए। पर न वो इस आवाज को सुनकर क्यों चौंकता। मैंने देखा कि वो धीरे धीरे रिंग की दीवार की तरफ से रख रहा था। शायद वो किसी दाव के फिक्र में था। मेरा जहन सीटी की आवाज में उलझा हुआ था, इसीलिए मैं नहीं देख सका कि क्या हुआ था। मुझे अहमद बरबरी की चीख ने चौंका दिया। अहमद के बाजू से खून बह रहा था और डेविल के हाथ में फुट भर लंबी नोकदार फौलादी सलाख थी। उसने इसे अहमद पर हमला किया था। वो बाजू दबाते पीछे हट रहा था कि डेविल ने दूसरा वार किया। अगर अहमद फुर्ती न दिखाता तो सलाख उसके दिल में उतर जाती। इसके बावजूद उसकी पसली जख्मी हुए बगैर नहीं रह सकी। ये बेईमानी है, मैंने धाड़ कर कहा। इसके पास सलाह कहां से आई? मुझे क्या मालूम, जानगरे ने बेपरवाही से कहा। मुमकिन है तमाशाइयों में से उसके किसी हमदर्द ने उसे दी हो। अब इसका काम आसान हो गया है। उसका नहीं, तुम्हारा काम आसान हुआ है, मैंने जहरीले लहजे में कहा। सलाख उसे रिंग से मिली है और इसका ताल्लुक सीटी की आवाज से है। किसी मैकेनिज्म के जरिए रिंग में कोई खुफिया खाना खुल जाता है और डेविल को मालूम था कि इसे सलाख कहां से हासिल करनी है। सीटी की आवाज इसके लिए इशारा थी। तुमने सीटी का बटन दबाया था ना? हाँ, उसने बेसाख्ता कहा, फिर गड़बड़ा कर बोला। तो तुम जो जाओ समझो। मैंने रिंग की तरफ देखा। डेविल के वार ने अहमद के दूसरे हाथ को भी जख्मी कर दिया था। शायद उसने हाथों से उसके वार को रोकने की कोशिश की थी। खून बहने से उसके अंदाज में कमजोरी आ गई थी और साफ लग रहा था कि वो ज्यादा देर इस शैतान का मुकाबला नहीं कर सकेगा। वो इस पर गालिब आ जाएगा और फिर उसे मार डालेगा। नहीं, इसे किसी कीमत पर मरना नहीं चाहिए। मैंने फैसला कुन अंदाज में सोचा और जान ग्रे की तरफ देखा, जो पूरी दिलचस्पी से रिंग की तरफ देख रहा था। मैं हरकत में आते हुए जीना को पीछे धकेला। दूसरी लड़की एक ही हाथ में बूथ के शीशे से जा टकराई और बेसुध होगी। मैंने बआसानी जान ग्रे को गर्दन से काबू कर लिया। इससे पहले कि मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूं, मैंने उसका दायां बाजू मरोड़ कर पुश्त लगाते हुए कहा, इस शैतान को रोक लो, वरना अहमद बरबरी से पहले मौत का फरिश्ता तुम्हें ले जाएगा। मेरी गिरफ्त उसकी गर्दन पर इतनी सख्त थी कि वह सिवाय तड़पने की कुछ नहीं कर सकता था। उसने बामुश्किल असबात में सर हिलाया। मैंने गिरफ्त से जरा ढीली की तो उसने लर्ज़ते लहजे में कहा, तुम भयानक गलती कर रहे हो, मुझे छोड़ दो, मैं सब भूल जाऊंगा। लगता है तुम मौत को भूल गए हो। इस बार मैंने दबाव इतना बढ़ाया कि उसकी आंखें उबलने लगी। उसने फिर जल्दी से सर हिलाया, लेकिन मुझसे एक बुनियादी गलती हो चुकी थी। मैंने जीना को धक्का देकर गिरा दिया था। इसके बाद इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी थी और यही गलती मेरे लिए मोहलक साबित हुई। मैंने दूसरी बार सर हिलाने पर जान ग्रे की गर्दन पर गिरफ्त से जरा ढीली की थी। इसने गहरी सांस ली। मैंने बामुश्किल 30 सेकंड के लिए उसकी गर्दन दबाई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसे साल भर बाद सांस लेने का मौका मिला हो। जल्दी करो, वरना इस बार मैं गर्दन दबाने में वक्त जाया नहीं करूंगा, मैंने सख्त लहजे में कहा। उसी लम्हे मेरे सर से कोई सख्त चीज टकराई और एक लम्हे के लिए मेरी आंखों तले अंधेरा छा गया। फिर मैंने धुंधले साए की तरह डेविल को सलाख बुलंद करते देखा। अहमद बरबरी जमीन पर गिरा हुआ था और निशाना उसका दिल था। मैं इतना ही देख सका था कि दूसरी ज़रब ने मुझे नाक आउट कर दिया था। बचपन में मैंने एक बार जमशेद पैलेस में मुलाजमों के बच्चों को अजीब से खिलौने से खेलते देखा था। इन्होंने टीन के एक डिब्बे में कंकर भरकर उसे छनछना बना रखा था। जब उसे हिलाते तो बेपनाह शोर बुलंद होता था। ये शोर ऐसा था कि सीधा दिमाग को जाकर लगता था। इस वक्त तो मुझे यूं लग रहा था कि मेरा सर एक झंझना है, इसमें कंकर भरे हुए हूं। मेरे जरा से सर हिलाने पर ऐसा शोर उठता कि खुदा की पनाह, मैं सहम कर साकित हो जाता था। रफ्ता रफ्ता शोर में कमी आने लगी थी। जब जरा सुकून हुआ तो मैंने महसूस किया कि यह दरअसल दर्द था जो मुझे शोर की सूरत में परेशान कर रहा था। मैंने आंखें खोली, लेकिन फौरन ही बंद कर ली। दर्द की ऐसी ही लहर उठी थी कि मैं सोचना भी नहीं चाहता था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ क्या हुआ है। बतदरीज दर्द में कमी आई तो मैंने आंखें खोल कर देखा और उठ बैठा। ये वही कोठरी थी जहां मैं और उबैद सलाम मुकीम थे। हम कैद में थे। मैं सोचने लगा कि मेरे सर में दर्द क्यों हो रहा था। मैंने छू कर देखा, सर पर पट्टी बनी हुई थी। मेरा सर जख्मी था। मैंने ज़हन पर जोर दिया। रफ्ता रफ्ता तस्वीरें उभरने लगी। जानगरे मुझे यहाँ से लेकर आया था। नाइट क्लब, बार, खाल और वहां मौजूद बेशुमार अफराद, वस्त में रिंग, एक बदसूरत देव और एक शुजीला नौजवान, मुझे सब याद आने लगा। बेख्तियार मेरा दिल दर्द से भर गया। वो शुजीला नौजवान अब दुनिया में नहीं रहा था। जुल्म ने उसे मिटा दिया था। पति ने नेकी पर गलबा पा लिया था। मुझे जानगरे याद आया जो मेरी गिरफ्त में मचल रहा था। काश कि मैंने उसकी गर्दन तोड़ दी होती। किसी ने मेरे शाने पर हाथ रखा। अब कैसे हो? मैं चौंका। ये उबैद सलाह था। इसके हाथ में एक गिलास पानी और गोलियां थी। उसने कहा, ये खा लो, तुम्हारी तबीयत बेहतर हो जाएगी।
मैंने उसे गोलियां लेकर पानी के साथ निकलनी। क्या हुआ था मालूम नहीं। सुबह के करीब 2 अफराद तुम्हें उठा कर लाए थे। इन्होंने कुछ बताया नहीं। बहरहाल मैंने तुम्हें जिंदा पाकर ही खुदा का शुक्र अदा किया, वरना मुझे तो इसकी उम्मीद भी नहीं थी। क्या उन्होंने तुम पर तशद्दुद किया था? नहीं, बल्कि मैंने उस खबीस चांदगरे की गर्दन दबाई थी। ये चोटें उसका नतीजा है। मैंने सर टटोला। पूरी बात पता, उसने बेताबी से कहा। मैंने उसे नाइट क्लब और रिंग में होने वाले वाकयात के बारे में बताया। अहमद बरबरी के बारे में सुनकर वो चौंका। मैंने उसे देखा है, शानदार नौजवान है। था कहो मेरे दोस्त, मैंने अफसोस से कहा। अब वो इस दुनिया में नहीं है। बेहोश होने से पहले मैंने डेविल को उसके सीने में सलाख खोंपते देखा था। मुझे यकीन नहीं कि वो ऐसी बेबसी की मौत मारा जाएगा, उबैद सलाह ने कहा। जब मौत आती है तो सब बेबसी से मर जाते हैं, मैंने हकीकत बयान की। अहमद बरबरी भी एक इंसान था। अफसोस उसकी जवान मर्गी का है। हालांकि मौत न बूढ़ा देखती है और न बच्चा, और सबसे बढ़कर वो बुरे लोगों के हाथ मारा गया। अहमद बरबरी की मौत ने हम दोनों को अफसुर्दा कर दिया था। उबैद सलाह सर झुकाए बैठा था। यकदम उसने सर उठाया और गुर्राते हुए कहा, अगर मैं जिंदा रहा ना तो इसके कातिल मेरे हाथ से बच नहीं सकेंगे। मेरे पास दावा करने के लिए कुछ नहीं था। मैं नहीं जानता था कि जसारत के बाद जानगरे का रद्द अमल क्या होगा, लेकिन एक बात तय थी कि ये मेरे हक में नहीं होगा। मैं जानगरे की कीना परवर शख्सियत के बारे में अच्छी तरह जान गया था। सुबह के नाश्ते में हमारे लिए दलिया और मछली आई थी। लगता था कि मकामी लोग ज्यादातर मछली पर गुजारा करते थे। इसका मतलब था कि यहाँ बाकायदगी से माहीगीरी भी होती होगी। इस सूरत में इतने सारे लोगों की खुराक की जरूरत पूरी हो सकती थी। ऊपरी तबके के लोगों की खुराक भी यकीनन अच्छी होगी और वह दुनिया की नेमतों से लुत्फ अंदोज होते होंगे। उबैद सलाह ने मुझे दर्द कुछ गोलियों की एक शीशी दी थी, जो मुझे लाने वालों ने उबैद सलाह को इस हदायत के साथ दी थी कि इसमें से 4 गोलियां हर 6 घंटे बाद खिलानी है। दिन की रोशनी पूरी तरह फैल चुकी थी। वाहिद रोशनदान से यह अंदाजा लगाना दुश्वार था कि दिन कितना चढ़ चुका है। मैंने अपना जायजा लिया। 3 दिन से पहली वर्दी मैली हो चुकी थी और पुष्ट की जानिब इस पर खून के धब्बे भी आ गए थे। जिस्म मैल ज़दा हो रहा था। बेतहाशा पसीना आने से हालत और भी खराब लग रही थी। शेब बढ़ आई थी और सर पर पट्टी बंधी थी। गज़के में अच्छा खासा तबाहाल लग रहा था। अलबत्ता दर्द कुछ गोलियों ने दर्द में खासी कमी कर दी थी। अब इसकी मौजूदगी मुझे परेशान नहीं कर रही थी। अचानक मुझे अपने पिस्तौल का ख्याल आया। मैंने झपट कर बिस्तर का किनारा उठाया। पिस्तौल वहां से गायब था। उबैद सलाह ने मुस्कुराते हुए रोशनदान की तरफ इशारा किया और आहिस्ता से कहा, मैंने एहतियातन वहां रख दिया था। मैंने बिस्तर पर चढ़कर रोशनदान की दीवार पर रखा, पिस्तौल उठाया और उसे फौरन अपने मोजे में उड़स लिया। अच्छी बात यह थी कि हमारे सामने वाली कोठड़ी खाली थी और पहरेदार भी निस्फ घंटे के बाद राउंड लगाता था। अच्छी बात यह थी कि अब तक मेरी तलाशी नहीं ली गई थी। तमाम अशिया मेरी जेब में थी। अलबत्ता रात किसी ने मेरी कलाई की घड़ी उतार ली थी और उबैद सलाह के पास घड़ी नहीं थी, लिहाजा हमें वक्त का अंदाजा नहीं रहा था। अब तक मैंने खुद को तकदीर के सहारे पर छोड़ रखा था। मैं देखो और इंतजार करूं की पॉलिसी पर कारबंद था, लेकिन अहमद बरबरी की मौत ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। खुद मुझे अपनी आफियत खतरे में नजर आती थी। मैंने फैसला कर लिया कि अगर कोई ऐसा वक्त आया तो मैं मरने वालों में अकेला नहीं रहूंगा, बल्कि मेरे साथ 2-3 और भी जाएंगे। दोपहर के वक्त दूसरी मर्तबा दर्द कुछ गोलियां खाकर मेरी हालत तकरीबन दुरुस्त हो गई थी। सर में दर्द ना होने के बराबर रह गया था। खटका हुआ तो मैं समझा कि शायद खाने वाला आया है, लेकिन दरवाजे पर नजर पड़ते ही मैं उछल पड़ा था। वहां जानगरे खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुम किसी कुत्ते की औलाद है। मेरे मुंह से गालियों का फवारा निकला था। जानगरे बदस्तूर मुस्कुराता रहा, जैसे मैं उसकी मद्दाह सराई कर रहा हूं। फिर उसने हाथ उठाकर कहा, बस करो, वहां जो हुआ मुझे उसका अफसोस है। अगर तुम, काश कि मैं पहले तुम्हारी गर्दन तोड़ता, मैंने दांत पीस कर कहा। यह ख्वाहिश दिल में लिए बहुत सारे लोग इस दुनिया से जा चुके हैं वहन साहब। बहरहाल मैं कहने आया हूं कि अब भी वक्त है, तुम संभल जाओ। अगर तुम हमारा साथ देने का वादा करो तो मैं तुम्हारी सारी खताएं माफ करने के लिए तैयार हूं। मेरा दिमाग भग से उड़ गया था। वह हरामजादा मुझे अपने साथ शामिल होने के लिए कह रहा था, मुझे कजाक बनने को बोल रहा था। मैंने तेजी से झुककर मोजे से पिस्तौल निकाला और जानगरे पर गोली चला दी। वो एक चीख के साथ पीछे जा गिरा था।